Hello बच्चों, nice to meet you again. I am Alok sir. Today we are going to discuss about animal cell and plant cell. We already know that in previous class, difference between plant cell, animal cell, and prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay, and size of cell and shape of the cell. All these topics are also discussed in previous lectures. Today I am going to debate and make you aware uh, what is a cell wall and what is a cell membrane. Okay, so you can guess, here is a animal cell and the side is a plant cell. There are two sides, animal cell and plant cell. Okay, this is a plant cell structures and this is a animal cell structures, right? जो outer covering है बेटा, it is outer covering is known as cell membrane. The outer covering of the animal cell, outer layer of the animal cell is known as cell membrane, and outer covering of the plant cell is known as cell wall. ठीक है, ये डिफरेंट होती है. एनिमल सेल की आउटर लेयर जो है वो सेल वॉल है और प्लांट सेल की आउटर लेयर जो है वो जो एनिमल सेल की आउटर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. और जो प्लांट सेल की आउटर लेयर है उसे हम सेल वॉल बोलते हैं, राइट. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में बहुत अंतर है. पहला डिफरेंट तो यही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग होते हैं, ठीक है, और जो सेल वॉल होता है वो डेड होता है. तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं? नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में पाई जाती है, ठीक है, प्लांट में भी पाई जाती है जो सेकेंड लेयर होती है, राइट. तो हम सबसे पहले सेल वॉल की बात कर लेते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डिबेट अबाउट cell wall. Okay, do you have idea what some points about cell wall? No, okay, don't worry, I make you aware about it. Plant cell have a cell wall surrounding by cell membrane. जो plant cell have a cell wall and surrounded by cell membrane, it is outer rigid protecting. It is also, second point is that it is also an outer rigid protecting and supportive covering of a plant cell, right. It lie where it is lie, it lie outside of a plasma membrane. जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे है. सो दैट्स व्हाई आई एम से टू यू, थर्ड पॉइंट इज देयर, इट लाई आउटर surface outer surface of plasma membrane. Okay, and fourth point is there, it is made up of cellulose. All plant cell wall is made up of, right, it is made up of cellulose. Okay, and cellulose provide mechanical strength and rigidity to the cell. Okay, so do you have idea only plant cell are bounded by cell wall or another organism also? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्लांट सेल के ही सेल जो होते हैं आउटर कवरिंग जो सेल वॉल की होगी, कि कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी आउटर कवरिंग सेल वॉल की हो सकती है? डू यू नो एनी आइडिया अबाउट इट? ओके, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के केस में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल एंड विच इज मेड अप, या बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग जो अलग टाइप की होती है, यूकैरियोटिक सेल नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दोनों पाए जाते हैं. आउटर कवरिंग सेल वॉल की हो जाती है जो डेड होती है, बट इसकी जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकोजन की, ग्लाइकन की. ओके, पेप्टाइडो ग्लाइकन. बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो ग्लाइकन and plant cells cell wall is made up of cellulose, right. Yeah, cellulose is a complex carbohydrate which we cannot able to digest it easily. Okay, only cattle animal can digest it due to the help of some phenomena. There are another concept
a cattle animal like buffalo, goat, etc. Okay, and one if we talk about fungi, अगर हम फंगी की बात करें, इनमें भी सेल वॉल्स होते हैं जिनका जो किस चीज के कंपोनेंट के बने होते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड एल्गी के सेल भी सेल वॉल के बने होते हैं। अब वही अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो मेन फंक्शन तो इसका यही है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट या सेल, राइट। It provide definite shape to the cell. Second, it provide definite shape, and second point, it provide rigidity and mechanical support. Mechanical support. After that, it also give shape, mechanical support, and it also protect the cell organelles and cell membrane and internal structure. So what you write, it protect cell membrane and internal structure. Cell membrane and या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट। आफ्टर दैट हम बात कर लें कि व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो रहा हमारी प्लांट सेल की बात है, प्लांट सेल की आउटर कवरिंग की बात हो गई जो सेल वॉल है, ठीक है। और इट इज अ प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है डेड होती है, और ये कहाँ लाई करती है, तो आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इन बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकोजन, इन फंगस इट मेड अप ऑफ काइटिन, एंड इन एल्गी ऑल्सो इट इज फाउंड। तो ये कहाँ सेल वॉल कहाँ मिलेंगे, प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंगस सेल एंड एल्गी सेल। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो इट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल इज प्रोवाइड शेप and rigidity and give mechanical support to the cell membrane and internal structure of the cell. Okay, after that we have to now debate. Now do you know what is the diagram in the front of you? क्या आप बता सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ मिलेंगे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में मिलेगा। आपको ये एकदम याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और this cell is known as prokaryotic cell, and it is a bacteria cell, and it is a eukaryotic cell of animal, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम कुछ खास बात बताएं आपको, तो एवरी सेल इज बाउंडेड बाय विद अ डेलिकेटेड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक सेल डेलिकेटेड मेम्ब्रेन से बाउंडेड है which is known as cell membrane या plasma membrane. It is outermost covering of animal cell while second outer covering of the plant cell. मतलब मैंने ये कहा कि all animal cell is bounded by, मतलब एक्सटर्नल जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, और जितने भी प्लांट्स हैं उनकी एक्सटर्नल लेयर जो है पहले वो सेल वॉल है एंड सेकेंड सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड हेल्प इन टेकिंग फूड, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, एंड टेकिंग फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द इंटरनल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। मतलब एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये इस चीजों को टेक कर पाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड 19 अगर एक साइंटिस्ट की हम बात करें whose name is सिंगर एंड निकोलसन, यहाँ दो साइंटिस्ट ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया अपने लाइफ में। 1972 की बात है बेटा, 1972 में सिंगर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन की हम बात करें तो इन्होंने बेहतरीन, इस जो आप सैंडविच मॉडल आपके सामने डेस्कटॉप पे दिख रहा है, it is suggest and called fluid mosaic model FMM। मतलब क्या हुआ, fluid mosaic model। According to them, Singer and Nicholson's plasma membrane is made up of
बाइलेयर फॉस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर से बाउंडेड है बेटा। देखो एक अपर लेयर दिख रही है और लोअर लेयर दिख रही है, दोनों लिपिड की बनी है हेड एंड टेल के फॉर्म में। ये आप सर्कल के फॉर्म में जो देख रहे हो इसे हेड बोलेंगे, और ये जो यहाँ पे टेल निकली हुई है, ठीक है, इसको हम टेल बोलेंगे। तो डबल लेयर से बाउंडेड है अपर एंड लोअर पे, ठीक है, बायोफॉस्फोलिपिड बोलते हैं इनको। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया, गिवन प्रपोज किया इस थ्योरी को, और इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर से बाउंडेड है, मतलब डबल फॉस्फोलिपिड से बाउंडेड है, जिसमें दो तरह की प्रोटीन्स आती है बेटा। पहला प्रोटीन का नाम है इंटर्सिक प्रोटीन, व्हाट आई एम से टू यू, intrinsic protein, right? And second is a beta extrinsic protein, extrinsic protein, ठीक है। There are two type of protein, intrinsic protein and extrinsic protein, right? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबल इसलिए बोला गया क्योंकि ये मटेरियल को क्या करता है, इन एंड आउट करता है, ठीक है। और जैसे कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म का फ्लूइड हो गया, और ECF क्या है, तो ECF है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ओके। आफ्टर दैट इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम बात कर लेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें आप बेटा क्या क्या पढ़ोगे, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन, सेकेंड पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस, थर्ड हम बात कर लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एंड फोर्थ हम बात कर लेंगे एंडोसाइटोसिस की। व्हाट आई एम से टू यू, एंडोसाइटोसिस। देयर आर फोर प्रोसेस, ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस सब्सटेंस क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल एंड इनसाइड ऑफ द सेल जो भी मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ फोर कंसेप्ट। पहला है डिफ्यूजन, सेकंड है ऑस्मोसिस, फोर्थ थर्ड नंबर पे है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ इज एंडोसाइटोसिस। तो वन बाय वन करके हम इसके बारे में डिबेट कर लेते हैं।